Hello students. Continue the chapter accounting equation. The next topic is process of accounting equation. The first step is to analyze the transaction to ascertain to which variable of accounting equation it will affect by using the word clear. Clear means C for capital, L for liabilities, E for expenses, A for assets and R for revenue. First you have to analyze in the transaction which variable is affected. If it is affected a capital, liability, expenses, assets or revenue. After that, decide the effect of transaction on components of accounting equation. Whether they will be increase, decrease, the asset, liability or capital. After the variable identified through the clear word, then we have to decide the effect it will increase, decrease the asset, liability or capital. For example, business started with cash. In this transaction, there are two variables, cash and capital. Cash is our asset यानी A and the capital introduced into the business is related to the capital यानी C. तो यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स इफेक्टेड होंगे C एंड A. इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल विल इंक्रीज बिकॉज वी इंट्रोड्यूस द कैपिटल इनटू द बिजनेस. बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी. एंड एसेट्स फॉर्म में कैश बिजनेस में आ रहा है. कैश इज इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस तो इट्स आल्सो इंक्रीज. तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द transaction to ascertain the which variable is affected. After that, decide those components will increase or decrease. Finally, record the effect of accounting equation in the monetary terms. Finally, we increase or decrease in our accounting equation assets is equals to capital plus liability. कि कहाँ से वो कहाँ ऐड होगा और कहाँ डिक्रीज होगा. फाइनली वी हैव रिकॉर्ड द फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ assets is equals to liability plus capital in the particular format. So these are the three steps. First to analyze it, then decide the effect and write the effect. Now start with some example. Show the accounting equation on the basis of the following transactions and prepare a balance sheet on the basis of equations. John started business with cash rupees 40,000. This is the first transaction. John is a owner, started business with cash rupees 40,000. He introduced into the business rupees 40,000. What is the effect in accounting equation? This is the format of accounting equation. First is the serial number, transaction, assets is equals to liability plus capital. This is the transaction. John started business with cash rupees 40,000. There are two variables, cash and capital. There are two accounts in this transaction, cash and capital. In clear word, the C is denoted for a capital and cash is our asset. So assets, so both are increase. First we have identify, then identify the effect. इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो इट विल बी एडेड इन द कैपिटल, इट मीन्स इंक्रीज. एंड एज कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है बिजनेस में तो इट इज ऑल्सो डेबिट व्हाट कम्स इन. बिजनेस में कैश आ रहा है तो एसेट्स इज ऑल्सो increase. How to write in the accounting equation format? Write this. Serial number 1 transaction में हम डिटेल लिखेंगे ट्रांजेक्शन की. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. इक्वेशन लिखेंगे assets is equals to liability plus capital.
देन हम एक और कॉलम बनाएंगे डिटेल्ड का कॉलम, जिसमें हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि दे आर नंबर ऑफ एसेट्स, कैश है, डेटर्स हैं, फर्नीचर हैं, मशीनरी है, एंड हेयर लायबिलिटीज़ आर क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बिल्स पेबल हैं, तो हम उनके लिए भी एक स्पेस रखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया कैश। इन एसेट साइड 40,000 का कैश है, इन कैपिटल साइड बीच में इज इक्वल्स टू साइन, एंड इधर 40,000. This is final equation. 40,000 is equals to 40,000. After each transaction, assets is equals to liability plus capital. It is a mathematical equation. So after each transaction, after each effect, the transaction should be tally. The equation should be tally. 40,000 is equals to 40,000. Now come to the next transaction, purchase goods on credit 15,000. अब हमने गुड्स यहाँ पर खरीदे हैं लेकिन क्रेडिट में खरीदे हैं। गुड्स परचेज, यानी अब यहाँ पर दो अकाउंट हैं, परचेज ऑन क्रेडिट। तो हम इस ट्रांजेक्शन को समझ लेते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 15,000. फर्स्ट वी आइडेंटिफाई थ्रू द वर्ड क्लियर। तो यहाँ पर स्टॉक, गुड्स को हम स्टॉक कहेंगे। क्रेडिट से, क्रेडिट मीन सप्लायर से गुड्स खरीदें तो इट इज़ अवर क्रेडिटर। स्टॉक हमारा एसेट्स में आता है, इट इज़ डिफाइंड इन एसेट्स। क्रेडिटर्स आर अवर लायबिलिटी। गुड्स ऑन परचेज, गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स आए हैं बिजनेस में तो इट विल बी इंक्रीज इन अवर एसेट्स। क्रेडिटर यानी गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो इन लायबिलिटी साइड वी add in our creditors, तो liability is also increase. How to write in accounting equation? Purchase goods on credit. goods खरीदे हैं, it means stock, तो एक एसेट क्रिएट हो गई स्टॉक के नेम से 15,000 की, इज इक्वल्स टू क्रेडिट में खरीदे हैं इसलिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई क्रेडिटर्स नेम से 15,000. द न्यू इक्वेशन इज 40,000 कैश प्लस 15,000 स्टॉक इज इक्वल्स टू 15,000 के क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए प्लस 40,000. दिस इज द न्यू इक्वेशन. आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन द अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल. 65,000 is equals to 65,000. The next transaction is purchased furniture for cash 10,000. We have purchased furniture. Furniture means asset. For cash में हमने furniture खरीदा है 10,000 का. तो here also two accounts are affected, furniture and cash. Cash is our asset and furniture is also our asset. Cash is decreased क्योंकि we have paid cash rupees 10,000 and against cash we purchase furniture. It means furniture is in the business. तो assets increase हो गई due to furniture and due to cash assets एक बार decrease हो गई. But we have two different heads, cash and furniture. So how to write in accounting equation? We have create a new asset that is new name for furniture. Cash is decreased rupees 10,000 in the furniture purchase furniture. Cash decrease rupees minus 10,000 लिखेंगे. स्टॉक में कोई चेंज नहीं है. फर्नीचर इंक्रीज हो गया 10,000 से इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है. तो न्यू इक्वेशन हो गई 30,000 40 माइनस 10 30,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 15,000 प्लस 40,000. It means again after third transaction our accounting equation is equal. 55,000 55,000. The next transaction is paid rent 300 and salary 700. रेंट पे किया है, सैलरी पे की है. दीज आर अवर एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस के लिए हमने बात की थी कि इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल.
अब आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं तो कैश फॉर्म में पे किए होंगे, तो एक तो एसेट इफेक्टेड हो रही है आपकी और एक आपके एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एंड वी हैव पेड ₹1000 रेंट एंड सैलरी के नेम का, तो इट इज़ ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम एसेट साइड से, कैश से डिडक्ट हो जाएंगे. तो हाउ टू राइट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन इन फॉर्मेट रेंट, पेड रेंट एंड सैलरी 700 + 300 टोटल ₹1000 पे किए गए हैं, तो कैश से डिडक्ट हो जाएंगे ₹1000. स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एक्सपेंसेस हैं इसीलिए आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी. तो नाउ न्यू इक्वेशन इज 29,000 + 15,000 + 10,000 इज इक्वल्स टू 15,000 + 39,000. After fourth transaction, our accounting equation is equal for both the sides. Now the next transaction is transaction number 5th. Sold goods costing ₹12,000 on credit 15,000. 12,000 के गुड्स जिनकी कॉस्ट, जिनको बनाने में या जिनको बनाने में सिर्फ ₹12,000 खर्च हुए हैं, उनको हमने ₹15,000 में सोल्ड कर दिया, तो वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,000. 3,000 का हमें प्रॉफिट हो गया. तो हाउ टू राइट दिस ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 ऑन क्रेडिट 15,000. क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए यानी स्टॉक कम हुआ होगा हमारा, तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ेगा? स्टॉक पे. हमने अपने गोडाउन से गुड्स उठाकर सोल्ड कर दिए, तो गोडाउन से गुड्स गए यानी हमारा स्टॉक डिक्रीज हो गया. तो स्टॉक मीन्स हमारी एसेट्स डिक्रीज हो गई. कितनी कॉस्ट की? 12,000 कॉस्ट की. सोल्ड 15,000 में ज़रूर हुई है, लेकिन हमने उसको वैल्यूड किस में किया हुआ था? 12,000 में, क्योंकि हमने सेकेंड चैप्टर में किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, वेयर दैट स्टॉक इट शुड बी रिकॉर्डेड विच एवर इज लेस कॉस्ट और मार्केट प्राइस. तो मार्केट प्राइस कितनी पड़ रही है यहाँ पे हमें? 15,000. कॉस्ट कितनी है उसकी? 12,000, क्योंकि कॉस्ट में ही हम उतनी ही अमाउंट के गुड्स हमारे स्टॉक से आउट हुए हैं, तो वी हैव decrease only ₹12,000. The net effect, profit or loss, it will be adjusted in capital. The net effect of 15,000 and 12,000 is 3,000. It is profit and it is increase in capital. Capital increase हो जाएगी हमारी इससे, क्योंकि हमें ये profit हुआ है, तो ये profit 3,000 का capital में add on हो जाएगा. The third thing is we sold goods on credit, तो we create debtors. So debtors is our asset and it is also increased क्योंकि we have received 15,000 from that debtor who have purchased goods, जिसने हमसे गुड्स परचेज किए हैं उससे हमें 15,000 रुपीज़ बाद में रिसीव करने हैं, तो इसीलिए वी हैव क्रिएट अ न्यू एसेट कॉल्ड डेटर ₹15,000. How this transaction is right in accounting equation? Sold goods on credit. क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए हैं तो कैश तो कुछ हमारे पास आया ही नहीं, इसलिए ज़ीरो. स्टॉक हमारा कॉस्ट वैल्यू से कम हो गया, यानी जितने की कॉस्ट थी 12,000 रुपीज़ डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक. फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. वी हैव क्रिएट अ न्यू एसेट कॉल्ड डेटर्स. तो डेटर्स हमारी 15,000 की एक नई एसेट क्रिएट हो गई. अब हम फाइनल न्यू इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख लेंगे. द थर्ड इफेक्ट इज इंक्रीज द कैपिटल. कैपिटल इंक्रीज हो गई बिकॉज 12,000 के गुड्स 15,000 में सोल्ड हुए हैं, तो वी हैव मेड अ प्रॉफिट ₹3,000. द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड टू क्रेडिटर्स ₹8,500. पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, तो लायबिलिटी कम हो गई. तो इन लायबिलिटी साइड वी हैव डिक्रीज द क्रेडिटर्स को डिक्रीज कर देंगे 8,500 के अमाउंट से. पेमेंट हुई है तो वी हैव पेड कैश कम हो गया होगा हमारा. कैश कहाँ से कम होगा हमारा?
एसेट्स में से, तो इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कैश इन एसेट साइड. तो हाउ टू राइट दिस ट्रांजेक्शन? इन कैश वी डिडक्ट 8,500 एंड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के थे जिनसे हमने गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट में, उसमें से 8,500 की पेमेंट हमने कर दी है, हमारी ऑब्लिगेशंस कम हो गई हैं. तो नाउ द न्यू इक्वेशन इज 29,000 माइनस 8,500 इज 20,500 प्लस 3,000 प्लस 10,000 फर्नीचर प्लस 15,000 डेटर्स इज इक्वल्स टू 6,500 क्रेडिटर्स का बैलेंस रह गया है प्लस 42,000 हमारी कैपिटल है. आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन अवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आएगी. द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 1,500. इंटरेस्ट इज रिसीव्ड मीन्स इट इज़ अ रेवेन्यू एंड इट इज़ इंक्रीज अवर कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाएगा रेवेन्यू. एंड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो इट इज़ ऑल्सो increase our asset in the form of cash. So how to write this transaction? Cash is increased by rupees 1,500 and capital is also increased by rupees 1,500 in the form of revenue. So it is 22,000, 3,000 in stock, 10,000 in furniture, 15,000 in debtors, no change, 6,500 in creditors and 43,500 is capital. The next transaction is withdraw cash for private use. Cash is withdrawn from the business. It means asset is decreased in the form of cash. And withdraw for private use. Private use is a drawing, and if we withdraw drawing, it will be deducted from the capital. So it will be deducted from the capital rupees 4,000. So how to write this transaction? Cash is withdrawn from the business 4,000 in the form of drawing and it is deducted from the capital side also. So the new equation is 18,000 plus 3,000 plus 10,000 plus 15,000 debtors is equals to 6,500 creditors plus 39,500 capital. Now come to the next, brought goods from Ram. राम से गुड्स खरीदे हैं 8,000 के and paid cash rupees 5,000 immediately. Paid cash rupees 5,000 immediately. तो brought goods from Ram rupees 8,000 and paid 5,000 immediately. गुड्स खरीदे राम से, तो गुड्स खरीदे इट मीन्स स्टॉक विल इंक्रीज, स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया है 8,000 रुपीज से. पेड 5,000 इमीडिएटली, 5,000 आपने इमीडिएटली पे कर दिए हैं, तो आपकी एसेट डिक्रीज हो जाएगी. यू हैव टू पे 5,000 इमीडिएटली फ्रॉम द बिजनेस, तो कैश इज डिक्रीज एंड गुड्स परचेज हुए हैं तो आपका इंक्रीज हो जाएगा आपका स्टॉक 8,000 रुपीज़ से. एंड 8,000 में से 5,000 रुपीज़ यू हैव टू पेड इन कैश. द रिमेनिंग बैलेंस 3,000 रुपीज़ आपको बाद में पे करने हैं. इट इज़ योर लायबिलिटी ऑब्लिगेशन, दैट इज़ 3,000. हाउ टू राइट इन अकाउंटिंग इक्वेशन? वी हैव पेड इमीडिएटली रुपीज़ 5,000 कैश, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश. We have purchased goods rupees 8,000. We will be add 8,000 in stock and remaining 3,000 rupees paid in future. बाद में पे करेंगे तो it will create our liability in the form of creditors. तो creditors में हम इसको add कर देंगे. Now our final equation is the cash is 13,000, the stock is 11,000, the furniture is 10,000, debtors is 15,000, creditor is 9,500. And the final capital is 39,500. After final equation, assets is equals to liability plus capital. This is the final question. How to solve this question in the form of this format? This is the balance sheet. A balance sheet is the statement prepared with the view to measure the exact final position of the business on the certain fixed period.
आप एक स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, इस फॉर्मेट में बनाएंगे, लायबिलिटीज़ और एसेट्स के फॉर्मेट में. दे आर द टू एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स. In left hand side we write liabilities and in right hand side we write assets. It measure our financial position of the business. So in this question the assets are these and the liabilities and capital we write in the balance sheet form. Write this: creditors 9500 थे, capital 39500 थी, and in the right side we write assets, cash, stock, furniture and debtors. टोटल इसका टैली होना चाहिए 49,000. थैंक यू.